अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, प्रिकॉशंस अपने फॉलो कर रहे होंगे और जो भी पॉसिबल मेजर्स हैं इस पेंडेमिक के ख़िलाफ़ वो हम सब ले रहे होंगे। आज हम अपना FLT2 डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, और प्रीवियस FLT की तरह इसमें भी आपके वही एक पैसेज है और 10 MCQs हैं। स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमने पहले क्या करना है, बार बार दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में अब तो, कि हमने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड देन विल लुक अप फॉर द आंसर्स एंड बिफोर आफ्टर रीडिंग द पैसेज। According to the passage, which of the following statements is or are true of the Hubble telescope? It is unable to observe light on the infrared part of the spectrum. It will be replaced by James Webb Space Telescope in 2014. It was initially constructed in 1946 but not launched until 1990. 1 only, 2 and 3 only, 3 only, and 1 and 2 only. According to the passage, who had the idea for Hubble telescope? ठीक है, लेमैन स्पिट्जर जूनियर। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में ख़ास तौर पर जब आप स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो नाम, इवेंट्स, डेट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो याद रखनी होती हैं। आप अब देख लीजिएगा कि हम हबल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि सबसे पहले उसका आइडिया जो है वो किसने दिया था। देन इन लाइन 33 vicissitudes most closely means long delays which may compromise the shuttle launch, toxic emissions which may cause corrosion around the mirror, sound waves which may penetrate the mirror, shaking and quivering which may cause changes in the mirror. Then in the context of the passage, which of the following best articulates expresses, आपने पढ़ा हुआ है ये वर्ड उसमें गुड बाय मिस्टर चिप्स में, जब वो बात करता है ना कैथरीन के आइडियाज़ की, तो वहाँ वो कहते हैं एंड ही बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग देम, कि वो पहल जो है अपने सारे आइडियाज़ उसके साथ शेयर करती थी, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा को आर्टिकुलेट, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव शख्स नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, उसके साथ कोई भी बहस करना मुनासिब नहीं समझी। तो आर्टिकुलेट्स एक्सप्रेसेस in the context of the passage, which of the following best articulates the author's opinion of the inception of the Hubble? It was a pipe dream with little imminent chance of success. Pipe dream कहते हैं something that is in discussion or that is thought of but that is not practically possible. It was literary vehicle with little basis in reality. वो लिटरेरी व्हीकल भी वही है कि जो बस आपके ख्यालों में तस्वुरात में मौजूद हो। It was an emergency response to the quickening space race. It was based on a scientific proposition which was not proven. The primary purpose of the passage is to A. Draw a comparison between H.G. Wells' notion of time of travel with Albert Einstein's theory of relativity. Discuss the construction of the Hubble Space Telescope as a tool for exploring deep space. Examine difficulties which precipitated construction of corrective lenses for the Hubble's primary mirror. Describe the circumstances which underlay the mid-century national drive toward a large space-based observatory. Observatory कहते हैं वो चीज़ें जो बेसिकली स्पेस को ऑब्जर्व करती हैं, सैटेलाइट्स वगैरह. It can be inferred that the author regards time travel as an effective hook for a work of fiction but an improbability in the reality of astronomy. ठीक है, कि वो कहते हैं कि जी वर्क ऑफ फिक्शन कहते हैं ख्याली कहानी, जैसे वो थी डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्शन. या वो थी, आपने प्ले भी पढ़ा था विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, वो भी फिक्शन था. तो ख्याली तस्वुर, an interesting literary notion but proven to be impossible by Einstein's special theory. A persuasive topic in fiction as well as a hypothetical possibility
in light of Einstein's special theory. A ridiculous idea whose time has come and gone, as well as an astronomical improbability. It can be inferred from the passage that scientists believe that time is constant, unidirectional, a spatial dimension, and impenetrable mystery. An impenetrable mystery. Hubble Ultra Deep Field is the place where Hubble telescope is installed. Shows the capability of Hubble telescope to view galaxies. Is astronomers' aspiration to see beyond galaxies. Is the determinant of visual dimensions of space. The primary channel involved in the successful launching of Hubble into space is atmospheric conditions, supersensitive spectrograph, the jarring vibrations that occur during the launch. Jarring कहते हैं severe, intense, air pressure and temperature. As given in the line 16, the word muled over most nearly means considered, planned, reserved and initiated. Now we are specifically talking about line number 16. चलें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पैसेज को. वो कहते हैं 32,000 words novella. Novella, it's a brief form of novel, a short novel, उसको हम novella कहते हैं. आपने जो नॉवल पढ़ा है बेसिकली गुड बाय मिस्टर चिप्स, इट इज़ ऑल्सो अ नॉवेला. आप अगर इसके जॉनरा देखें, इसकी टाइप, इसकी कैटेगरी, क्लास इसकी देखें, विकीपीडिया वगैरह पे भी जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर इसको नॉवेला कहा हुआ है. ब्रीफ नावल, छोटा नावल, क्योंकि अदरवाइज आपको पता है कि नावल जो है वो बड़ा ठीक ठाक उसकी जो है वो वॉल्यूम होता है उसका. तो ये जो छोटे नावल्स होते हैं उनको नावेला कहते हैं. द 32,000 word novella, The Time Machine by H.G. Wells, published in 1895, is generally credited with popularizing the idea of time travel. Popularizing, making something popular. Credited, given credit to something. With popularizing the idea of time travel by means of a time machine, a vehicle which takes the occupant backward or forward in time. Occupant, the person who has occupied that machine. Dozens of sequels and adaptations over the years have further prompted the notion, idea. Indeed, Albert Einstein's theory of relativity lays the foundation for the possibility of time travel. So far, no one has demonstrated the ability to travel in time. However, time machines have been constructed and they do allow glimpses into the past. The most, अब ये देखें, इसमें अभी तक हमारे मतलब कि जो है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो कोई चीज़ भी नहीं आई, और लिहाजा इस पैसेज में अगर कोई मुश्किल वर्ड था, कुछ भी था, तो हमें उसको जो है वो याद करने की, उसको उस पर गौर फिक्र करने की, उस पर पॉन्डर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. एंड दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट. द मोस्ट एफिकेशियस टाइम मशीन करेंटली इन एग्जिस्टेंस इज, एफिकेशियस इफेक्टिव कहते हैं, in existence is the Hubble telescope, named after the American astronomer Edwin P. Hubble. Its capacity to locate distant astronomical targets and lock in on them, permitting their faint light to aggregate on its detector, allows it to peer far into the past. So this is the first thing. और कहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऐसी टेलीस्कोप्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हम जो है वो पास्ट में झांक सकते हैं. Light travels 186,000 miles per second. The Hubble telescopes had looked back in time at 10,000 galaxies whose light left them billions of years ago. Therefore, utilizing the telescope as a time machine, astronomers are able to contemplate galaxies as they were eons ago. Eons कहते हैं years, ages, ठीक है. Contemplate कहते हैं think about it, ponder करना, गौर फिक्र करना. Although the telescope was launched in space in 1990, अब ये पीछे उसने दिया हुआ, ये पहला, ये ऊपर वाली जो हमारी 10-14 लाइंस हैं, ये बिल्कुल कह लें कि एक तरह से they were a piece of waste for us. Although the telescope was launched in space in 1990, its inception was almost half a century earlier. अब ये उसने पीछे inception का पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है. अब वो लॉन्च कब हो रही है 1990 में, और इंसेप्शन कब आगे बताएगा.
Its inception was almost half a century earlier as astronomer Lehman Spitzer Jr. muled over the possibility of a large space telescope. अब यहाँ पर म्यूल्ड का क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गौर व फिक्र किया जा रहा है. और इंसेप्शन किसने की है? लेमैन स्पिट्जर ने. देन muled over the possibility of a large space telescope in a 1946 report, Astronomical Advantages of an Extraterrestrial Observatory. Because the Earth is bathed in its constantly churning atmosphere, churning कहते हैं burning, and rotating के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. Earth-based telescopes cannot penetrate deep space. The atmosphere distorts the view. फिर उसका atmosphere distort कहते हैं ख़राब कर देना. डिस्टॉर्शन अक्सर आपने ये सुना है माइक वगैरह में, ऑडियो हम सुन रहे हो तो वो कहते हैं डिस्टॉर्शन आ रही है. डिस्टॉर्शन मीन्स खराबी आ रही है, कुछ इंटरफेरेंस हो रही है. टेलीस्कोप्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन माउंटेन्स बट देयर वाज स्टिल नो वे टू होली एस्केप द इफेक्ट्स ऑफ द लेयर्स ऑफ गैसेज एनवेलपिंग द अर्थ. During the 1960s, the space race between the then Soviet Union and the United States was accelerating. Accelerating कहते हैं increasing को. The National Aeronautics and Space Administration NASA, ठीक है, ये याद रख लें. छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ में ये आपको वैसे भी काम आएंगी बहुत ज़्यादा. आपके जो दूसरी है ना यूनिवर्सिटीज़ अदर देन यूईटी, ठीक है, उसमें वो बाज़ औक़ात जनरल नॉलेज के इस तरह के क्वेश्चन फास्ट में नस्ट में पूछते थे, ख़ास तौर पे फास्ट में. तो उसमें आपको ये मतलब नासा है, यूएनओ है, यूनिसेफ है, नेटो है, ठीक है, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, सार्क है, ओआईसी है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको जो है वो थोड़ी बहुत उनकी आइडिया जो है वो होना चाहिए. सी पैक की टर्मिनोलॉजी है, सी पैक है, ये छोटी छोटी चीज़ें साथ ऐड कर लीजिएगा. द नेशनल Aeronautics and Space Administration was established. Funds for space endeavors were abandoned and plans for a large space telescope by then designated the LST were underway. ठीक है, LST क्या है जी? Large Space Telescope. The designs called for 2.4 meter primary telescope mirror which could be transported into space by one of NASA's rockets. According to National Geographic's Imaging Space and Time, the resolving power of the Deep Space Telescope would be equivalent to being able to distinguish the left and right headlights of a car in California seen from New York. ठीक है, अब लेंस की पावर देखें कि वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें लेफ़्ट और राइट हेडलाइट में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सके. कहाँ कि एक कार कैलिफोर्निया में खड़ी हुई है और न्यूयॉर्क में लगी टेलीस्कोप जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर सके. और फीचर्स लेस देन 1/30,000th द साइज ऑफ द फुल मून. ठीक है, कि अगर मून का साइज जो है उसको 30,000 टुकड़ों में भी डिवाइड कर दिया जाए तो इवन देन इट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्मॉल पीस ऑफ मून. दिस वॉज एटलीस्ट अ 10-fold इंक्रीज ओवर द एटमॉस्फेरिक लिमिट. कि करंट जो एटमॉस्फेरिक लिमिट थी उससे 10 गुना बेहतर कोई चीज़ हम पैदा करते तो फिर ये चीज़ जो है वो अचीव होना मुमकिन थी. One of the primary challenges involved in successfully transporting the telescope into space was protecting the mirror from gyring vibration. Gyring vibrations ये भी उसने पूछा है that occurred during the launch. सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि लॉन्च के दौरान जो gyring vibrations हैं उनसे उसको बचाना. It was crucial that the mirror be able to withstand the shuttle's vicissitudes. ये भी उसने पूछा हुआ है. अब ये वही वाइब्रेशंस हैं ऊपर जो उसने डिस्कस करनी, एज वेल एज द वोलाटाइल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फाउंड इन स्पेस. वोलाटाइल कहते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथनिंग. इफ नॉट द प्रिसाइज शेप ऑफ द मिरर कुड बी compromised and its imaging capability significantly weakened. ठीक है, सो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. After the telescope had been launched, astronomers subsequently realized that the primary mirror had not been ground correctly. Ground कहते हैं उसको बिल्कुल स्मूथ कर देना. ग्राइंड से ये ग्राउंड निकला. ठीक है, ग्राइंड करना क्या होता है, उसको बिल्कुल स्मूथ कर देना, उसके एजेस जो हैं उनको स्मूथ करना. A lens in the test instrument was about 1 millimeter SQ, which is large by optical standards. In 1993, spacewalking astronauts installed corrective lenses
which improved the eyesight of the Hubble. In 2009, the corrective lenses themselves were replaced by a super sensitive spectrograph with built-in corrective lenses. The new spectrograph is expected to provide insight into the origins of stars and galaxies. The successor to Hubble, the James Webb Telescope, is expected to be launched in 2014. इसके मुतालिक भी जो है वो उसने क्वेश्चन किया हुआ है. अब आप इस पैसेज में देख रहे हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली लेंथी पैसेज है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में जो कह लें कि लाइंस हैं वो क्या हैं, वो हमारे लिए इररेलेवेंट हैं. और यही आपको जब हम कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज अगर आपको याद हो, कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर्स कर रहे थे तो उस वक्त आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप क्वेश्चन पहले पढ़ लें सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि हमने जो है किस चीज़ को बिल्कुल जाने देना है. It will observe only in infrared, so it will complement the Hubble telescope which observes in the visible and ultraviolet light ranges. अब ये भी उसने पूछा हुआ था ना, ठीक है, कि जो हबल है वो कहाँ, हबल के मतलब कौन सी चीज़ सही है, तो उसमें वो पूछता है बेसिकली. एक उसमें ये भी था कि ये अल्ट्रावायलेट, ये सिर्फ जो है वो इंफ्रारेड में जो है काम कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती. ठीक है, तो वो लिख रहा है इट विल ओनली ऑब्जर्व इन इंफ्रारेड. ठीक है, सो इट विल complement the Hubble telescope which observes in the visible and ultraviolet light ranges. ठीक है, इट मीन्स कि ये इंफ्रारेड में ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करने के लिए आपने क्या भेजी है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. Hubble currently has the capability to view galaxies that were found 13.7 billion years ago, long before human existed, in an era called the Hubble Ultra Deep Field. ठीक है, अल्ट्रा डीप फील्ड के मुतालिक भी जो है उसने क्वेश्चन किया हुआ कि ये उसकी कैपेसिटी है बेसिकली. एस्ट्रोनॉमर्स एस्पायर टू सी बियॉन्ड द हबल अल्ट्रा डीप फील्ड टू अ टाइम दैट इज डिवाइड ऑफ गैलेक्सीज, अ टाइम बिफोर गैलेक्सीज हैड फॉर्म्ड. इफ H.G. Wells was on to something in his novella, the time may be close at hand. If H.G. Wells was on to something in his novella, the time may be close at hand. अगर उसने कुछ सोचा था तो वो वक्त क्या है, अब आने वाला है. As one of the characters in the popular work asks, if time is really only a four-dimensional space, why it is and why has it always been regarded as something different, and why cannot we move in time as we move about in other dimensions of space? Less than a decade after Wells' novella, Einstein's theory of relativity seemed to concur with Wells' character by proposing that traveling through space at the speed of light would alter time by causing it to dilate, raising the possibility of not merely glimpsing the past but perhaps traveling to it. ठीक है, कि अब ना सिर्फ हम देख सकेंगे उसे, बल्कि शायद ये भी मुमकिन है कि हम उसको उसमें ट्रैवल भी कर सकें. अब हम आते हैं जी इसके क्वेश्चंस पे. According to the passage, which of the following statements is or are true about Hubble telescope? It is unable to observe light on the infrared part of the spectrum. Yes, that is true. क्योंकि इंफ्रारेड में उसने क्या किया था, वो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप थी वहाँ इंफ्रारेड में देखने के लिए उसको लॉन्च किया गया था. इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द जेम्स वेब टेलीस्कोप इन 2014. ठीक है, रिप्लेस करने का उसको किसी ने नहीं कहा. ठीक है, सिर्फ ये कहा है कि उसके एक सक्सेसर आ जाएगा, एक और टेलीस्कोप लगा दी जाएगी. इट वॉज इनिशियली कंस्ट्रक्टेड इन 1946 बट नॉट लॉन्च इन 1990. कंस्ट्रक्ट नहीं की गई थी, सिर्फ कंसीव की गई थी. ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट इसको लॉन्च इसको 1990 में ही किया गया था. सो ऑप्शन 1 मैं लिख रहा हूँ. इसमें जो है वो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ओनली ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1, कि सिर्फ इंफ्रारेड में वो ऑब्जर्व नहीं करती. अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु हैड द आइडिया फॉर हबल टेलीस्कोप, ये हमने उसमें पढ़ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेमैन स्पिट्जर.
इन लाइन 23 विसिट्यूड्स मोस्ट क्लोजली मीन्स, अब ये मैंने आपको बताया था कि वो जेरिंग वाइब्रेशंस की बात हो रही थी, याद है? मैंने अभी जब हम पैसेज पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था। लॉन्ग डिलेज विच में कॉम्प्रोमाइज शटल लॉन्च, नहीं। टॉक्सिक एमिशंस, एमिशंस की भी कोई बात नहीं उसने की। साउंड वेव्स विच में पेनिट्रेट द मिरर, मिरर के अंदर पेनिट्रेट तो कर ही नहीं सकती, ठीक है? पेनिट्रेट करना क्या होता है कि एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ, दिस इज व्हाट वी कॉल पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन तो मुमकिन नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी कंसिडर्ड द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बार बार एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि बाज़ औक़ात सही ऑप्शन की बजाय ना आपको एलिमिनेशन पे जाना होता है, ठीक है? कि गलत ऑप्शन आप एक्सक्लूड करते हैं। अगर आप गलत ऑप्शन एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या है, वो निखर के उभर के सामने आ जाती है। नंबर 4 पे देखें जी, वो कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आर्टिकुलेट्स द ऑथर्स ओपिनियन ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द हबल। आर्टिकुलेट्स मैंने पहले भी बताया, एक्सप्रेसेस, इंसेप्शन कहते हैं उसकी जो एक कह लें कि ड्रीम है, एक जो उसका इनिशियल थॉट प्रोसेस है, उस पर इंसेप्शन कॉन्सेप्शन के मानों में आता है, कंसीव करना किसी चीज़ को। तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं जी, इट वाज अ लिटरेरी व्हीकल विद लिटिल बेसिस इन रियलिटी, नो। जब इसको 1946 में, बी ऑप्शन हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, कि जब इसको 1946 में कंसीव किया गया था तो इट वाज रियलिस्टिकली अ पॉसिबिलिटी। इट वाज, सी हम डिस्कस कर रहे हैं, इट वाज एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू द क्विकनिंग स्पेस रेस, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो 1960s में जाके सोवियत यूनियन और ये होता है जिसके बारे में वो कहते हैं कि जी ड्यूरिंग द 1960s द स्पेस रेस बिटवीन देन सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, 1 2 3 4 फोर्थ पैराग्राफ में, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। डी देखिए जी, इट वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोपोजिशंस व्हिच वाज नॉट प्रूवन, प्रूवन क्यों नहीं हुई भी? उसने हबल ने जो है वो अल्टीमेटली 1990 में एक रियलिटी की सूरत में जो है वो हमारे सामने उभर कर आई। सो ये प्रूवन फैक्ट है, ये ऐसा फैक्ट नहीं है विच वाज नॉट प्रूवन। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद, इट वाज अ पाइप ड्रीम विद लिटिल इमिनेंट चांस ऑफ सक्सेस। इमिनेंट कहते हैं नियर फ्यूचर में जो इम्पेंडिंग चीज़ होती है, कहते हैं कि ये एक पाइप ड्रीम तो था लेकिन माजी करीब मुस्तकबिल करीब में इसका फौरी पूरा होना जो है वो मुमकिन नहीं था। सो यहाँ हम क्या चूज़ करेंगे, विल चूज ऑप्शन ए। आगे देखें जी, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, प्राइमरी पर्पस क्या है जी, ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन H.G. वेल नोशन ऑफ टाइम ट्रेवल विद एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नो। ये तो उसने कंपैरिजन तो किया ही नहीं है, वो तो कह रहा था कि H.G. वेल ने जो सोचा था आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्या किया, उसको एक तरह से फिजिकली पॉसिबल बनाने की राह हमवार की, तो कंपैरिजन नहीं किया उसने। सी ऑप्शन पहले देख लें जी, एग्जामिन डिफिकल्टीज विच प्रेसिपिटेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्टिव लेंसेज फॉर द हबल्स प्राइमरी मिरर, ठीक है, ये भी नहीं है। ये तो उसने एक लाइन में तस्करा किया कि उसके मिरर को इशू था, फिर वो करेक्टिव लेंसेज पहले फिट किए और फिर ऑटो करेक्टिव लेंसेज जो है वो फिट कर दिए गए। डिस्क्राइब दिस, डी ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस व्हिच अंडरले द मिड सेंचुरी नेशनल ड्राइव टुवर्ड अ लार्ज स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, नहीं, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी के बारे में जो नेशनल रेस है उसका भी सिर्फ एक लाइन में तस्करा है, बाकी और कोई तस्करा नहीं किया। सो ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन फिर क्या बचेगी, अंडरस्टूड है, वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन, वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी। डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हबल टेलीस्कोप एज अ टूल फॉर एक्सप्लोरिंग डीप स्पेस। असल पूरे का पूरा पैसेज किसके गिर्द घूम रहा है, वो घूम रहा है हबल के गिर्द। इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर रिगार्ड टाइम ट्रेवल एज, अब देखें पहला, एन इफेक्टिव हुक, हुक कहते हैं ट्रिक, चीट, ठीक है, फॉर अ वर्क ऑफ फिक्शन बट एन इम्प्रॉबेबिलिटी इन रियलिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। वो तो नहीं ऐसा कह रहा, वो तो कह रहा है कि मुस्तकबिल में लास्ट लाइन आप देखें, वो कहते हैं कि ना सिर्फ हम टाइम माजी में जाके देख सकेंगे बल्कि शायद उस तक ट्रैवल भी कर सकेंगे। तो ये तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इम्प्रॉबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। बी देखिए, एन इंटरेस्टिंग लिटरेरी नोशन बट प्रूवन टू बी इम्पॉसिबल,
बाय आइंस्टाइन्स थ्योरी, नहीं, आइंस्टाइन की थ्योरी ने तो उल्टा उसको सपोर्ट किया था। वो जो लिटरेरी नोशन था H.G. वेल का टाइम ट्रैवल का, उसको आइंस्टाइन ने तो क्या किया था, उल्टा जाके उसको सपोर्ट किया था कि हाँ ऐसा मुमकिन है। अब परसुएसिव टॉपिक इन फिक्शन, परसुएसिव कहते हैं कन्विंसिंग, जो पढ़ने पे आपको मजबूर करते हैं, एज वेल एज अ हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी इन द लाइट ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी। यस, ये ऑप्शन जो है ये क्या है, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, कि ये पॉसिबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, और क्या है साथ ही साथ जो है वो फिक्शन राइटर्स जो हैं या फिक्शन रीडर्स जो हैं उनके लिए एक बड़ा अट्रैक्टिव टूल भी है। Then it can be inferred from the passage that scientists believe that time is constant, बिल्कुल नहीं कहते। यूनिडायरेक्शनल, नहीं बिल्कुल नहीं कहते। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है कि आप आगे जा सकें या पीछे, तो वो तो कह रहे हैं कि हम माजी में ट्रैवल कर सकते हैं। एंड इम्पेनेट्रेबल मिस्ट्री, नहीं, पेनेट्रेट कर दिया है, ठीक है। तो स्पेटियल डायमेंशन जो है इज द राइट ऑप्शन। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड, ये अब हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि उसके एरिया को, उसकी कैपेसिटी को बेसिकली डिफाइन करती है। इज द प्लेस वेयर हबल टेलीस्कोप इज इंस्टॉल्ड, नहीं, ये तो उसने कहीं नहीं कहा उसको। सी ऑप्शन देखें, इज एस्ट्रोनॉमर्स एस्पिरेशन टू सी बियॉन्ड गैलेक्सीज, भाई वो अल्ट्रा डीप फील्ड तो एक मौजूद है, वो एस्पिरेशन तो नहीं हो सकती किसी की। इज द डिटर्मिनेंट ऑफ विजुअल डायमेंशन ऑफ स्पेस, ठीक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम इससे आगे भी जाके देखने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो विजुअल डायमेंशन ऑफ स्पेस है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, आगे जाने के भी लोग सोच रहे हैं। तो फिर क्या है, ये शोज द कैपेबिलिटी ऑफ हबल टेलीस्कोप टू व्यू गैलेक्सीज, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द प्राइमरी चैलेंज इन्वॉल्व इन द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ हबल इनटू स्पेस इज, अब ये देखें, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, नहीं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तो वो कह रहा था कि हमने उससे 10 गुना बेहतर चीज़ बना ली थी, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। सुपर सेंसिटिव स्पेक्ट्रोग्राफ, नहीं, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, ये तो बल्कि उल्टा हेल्प कर रहा था। सुपर सेंसिटिव स्पेक्ट्रोग्राफ जब हमने इंस्टॉल किए उसमें, तो उसके जो लेंसेज थे वो ऑटो करेक्टिव मोड पे चले गए, वो खुद ही अपने आप को ठीक कर लेते थे। तो ये चैलेंज तो ना हुआ, ये तो एक हेल्प होगी, एड होगी। नंबर डी देखें, एयर प्रेशर एंड द टेम्परेचर, ये भी उसने पूरे पैसेज में कहीं उसका तज़किरा नहीं किया। सो द लेसन, लेसन कह रहा हूँ, द ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन सी। जैरिंग वाइब्रेशंस जो थी दैट वाज द मेन कंसर्न, और यही उसको जो है प्रॉब्लमेटिक जो है वो बना रही थी। देन नंबर 10 पे देखें, एज गिवन इन लाइन 16 द वर्ड म्यूल्ड ओवर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि म्यूल्ड ओवर जो है, अभी हमने, अगर आप दोबारा लाइन 16 पर जाएं तो वो कहते हैं, ऑल्दो द टेलीस्कोप वाज लॉन्च इनटू स्पेस इन 1990, इट्स इंसेप्शन वाज ऑलमोस्ट अ हाफ सेंचुरी अर्लियर एज एस्ट्रोनॉमर लेमैन स्पिट्जर जूनियर म्यूल्ड ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लार्ज स्केल टेलीस्कोप, ठीक है। पॉसिबिलिटी पे आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं, नो, पॉसिबिलिटी को प्लान नहीं करते। प्लान किसको करते हैं, प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। रिजर्व्ड, आप उसे खिंचे खिंचे रहते हैं, नहीं, अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो क्या करेंगे, उस पर कोई गौर व फिक्र करेंगे। इनिशिएटेड, पॉसिबिलिटी को इनिशिएट नहीं करते होते, पॉसिबिलिटी पे तो क्या करते होते हैं, वही फिर बात आ जाएगी कि प्रोजेक्ट को आप इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी को इनिशिएट नहीं कर सकते। लिहाजा द राइट ऑप्शन इज ओनली कंसिडर्ड। कंसिडर होता है थॉट ओवर, थिंक, इमेजिन, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हम थॉट ओवर को इस्तेमाल, म्यूल्ड ओवर को जो है वो सॉरी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही बेटे ये डिस्कशन भी जो है वो हमारी ख़त्म होती है। दैट वाज द सेकंड लास्ट डिस्कशन, दैट वाज द सेकंड लास्ट FLT फॉर यू। और अब हम वी आर विद एवरी पासिंग मिनट वी आर इंचिंग टुवर्ड्स आवर एग्ज़ाम्स, ठीक है, बहुत करीब जा रहे हैं हम अपने एग्ज़ाम्स के। बार बार आपको कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट्स जो है वो बहुत क्रूशल होती हैं। ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप मैक्सिमम इसमें अपनी जो है वो आउटपुट दें, और बी अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर टीचर्स, फॉर अस एंड फॉर योर पेरेंट्स एज वेल।
थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे, जीते रहें।